and how much did conditions have to, I guess, conditions suit you today? See, I don't look at end results and judge my bowling. There have been instances where I've bowled so much better than this and I've not gotten wickets. But I always look at to follow the same routine. Yes, today was a day where the white ball swung and there was some seam movement. So yeah, I wanted to exploit that. After when we started the innings, we saw there's some seam and swing. So we both of us had a conversation, Shami bhai and I, that we should go a little fuller and try and bowl the test match length. So yeah, it was a good day. We got wickets and there was some help in the beginning, and the wicket was also on the softer side. You've had lots of success in England, particularly this tour. What do you attribute it to? See, it's when things go well, they can point out a lot of things that yes, this went well. But I try to keep a balanced mind, not to go too far ahead. Yes, it was a good day, but we have to start again in the next game from zero. So I look to do that, keep a balanced head, and try and remember the things that have worked for me before as well. So in the previous tours as well, when I have come here, what has worked, what has not worked for me, keep that in mind, keep those mental notes whenever you start fresh. So yeah, all of these things I try to keep in mind and try to keep a balanced head. What has worked for you? Keeping things simple, not trying to overcomplicate it too much, and maybe shutting the outside noise has always worked for me. So all of those things are a part of my routine. I just wanted to say right now that England's batting in the last few years has been their super strength. Guys like obviously Jason Roy, Joe Root, Ben Stokes, all quality batsmen. Does that give you even more satisfaction when you have success like that against such a high-class opponent? Of course, no doubt about the quality of the England side. They've got a lot of good results, and whenever you do well against a very good team where they've got a lot of success, and then you always want to test yourself against very good players and in difficult conditions. So yeah, very happy with the overall performance, and yeah, today was a good day. जसप्रीत विमल कुमार आपसे करीब 6 साल पहले बात हुई थी जब पहली बार आप इंडियन टीम में आए थे, और तब से लेके अभी तक एक ही चीज़ देखा जो कंसिस्टेंट है, तभी आप यंगस्टर थे, नहीं खेले थे, वो कॉन्फिडेंस जो था वही बरकरार है, आप कभी भी कहे नहीं थे, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मेरे को 6 साल पहले क्या बोला था मेरे को याद तो है नहीं, बट ये बात है कि मैं प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल आवाज़ बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी नॉइज़ आपके दिमाग में आ सकती है, एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एज अ प्लेयर. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एवेल्यूएशन पे ध्यान रखूँ, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखूँ, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँ. अगर मैंने सब बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, मैंने मेहनत पूरी की हुई है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी है, फिटनेस अच्छी रखी है, अपने प्रोसेसेस जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं ये मेंटेन करूँ, तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है क्रिकेट में. चलिए, नॉइज़ की बात नहीं करते हैं. कई बार हम लोग इंडियन मीडिया में तो बह जाते हैं, बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन नासिर हुसैन इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन वेरी रिस्पेक्टेड है. उन्होंने अभी कमेंट्री बॉक्स में कहा, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट में बेस्ट बॉलर है, अगर कोई है कौन चैलेंज कर सकता है. उन्होंने जोश हेजलवुड का नाम लिया, उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, उन्होंने कहा मे बी पैट कमिंस. जसप्रीत बुमराह से ये सवाल, मतलब जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो फिर आप कहाँ से लगता है, डू यू कंसीडर कि ऑल फॉर्मेट में कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता? सी, वही मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों में, अच्छा आज अच्छा दिन गया है, बहुत सारी तारीफ़ आती है, बट मैं ना तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, ना अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता हूँ. यस, आज अच्छा दिन है, बट मैं ऐसे सब नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये फॉर्मेट में. मैं हर फॉर्मेट को बहुत इन्जॉय करता हूँ, एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं, मैं ऑब्वियसली लोग जो बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं वो सीरियसली लेता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो. वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपलॉज दैट यू गेट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्टेबल हेड, एंड दैट्स हाउ आई विल ऑलवेज बी. एक हफ्ता पहले हम टेस्ट खेल रहे थे, 2 दिन पहले हम T20 खेल रहे थे, आज हम 50 ओवर गेम खेल रहे हैं. कि शेड्यूलिंग जो होता है, चलो आज सक्सेस मिला, आप लेवल एडेड हो, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के बावजूद भी ये खेलना कितना मुश्किल. बहुत डिफ़िकल्ट तो होता है कि अभी हम 5 दिन पहले ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसमें हम अभी T20 क्रिकेट भी खेल चुके हैं और अभी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. तो मेंटल एडजस्टमेंट, फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. कभी 8 से 9 घंटा या 9 के बाद 10 घंटा भी सो जाना पड़ता है, बिकॉज आपको रिकवर होना है. और फास्ट बॉलिंग टफ जॉब है आपका, बॉडी पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है. तो ये सब चीज़ें हैं, बट हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमारा
एज चिल्ड्रन हमारा ड्रीम था कि हम इंडिया को खेलना था, तो वो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि इंडिया के लिए हम खेल रहे हैं, तो अपना बेस्ट फुट ही देना है। बट हमारे ओर से जो भी हम कर पाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कभी ट्रैवल भी आ जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके फ्रेश रहे। चैलेंज होता है बट जो हाथ में है वो कोशिश करें कंट्रोल करें। दूसरा एक थोड़ा सा अलग सवाल ये है कि क्या गेम है ये, क्योंकि वही बैट्समैन वही बॉलर, ठीक है विकेट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा माहौल अलग है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव ये क्रिकेट को भी कैसे आप खेल सकते हो? बहुत मुश्किल है ये हजम करना कि भाई वही बैट्समैन है, वही जो उल्टा है, वही ब्रेस्टो है, वही शमी है, वही घूम रहा है, लेकिन इतना उल्टा पुल्टा। यही तो क्रिकेट की ब्यूटी है कि एक दिन ऐसा लगेगा कि अरे सब आपके फेवर में जा रहा है, एक दिन आप कुछ भी ट्राई कर लो आपके फेवर में नहीं जाता है। बट इसी के लिए स्टेबल हेड रखना बहुत ज़रूरी है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आपको वही चैलेंजेस, कभी सिमिलर बॉलिंग करोगे और तुरंत पहली बॉल पे एज मिल जाएगी, कभी सारा दिन बॉल डालते रहोगे एज नहीं मिलेगी। बट इसी सिनेरियो में आप डेस्परेट नहीं होना चाहते हो, इसके लिए आप स्टेबिलिटी को मैं बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, बिकॉज आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम चीज़ें हैं। एक बार बॉलर ने बॉल छोड़ दिया, उसके बाद उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। कभी अच्छा बॉल डालेगा, एज डाला, कैच छूट जाएगा, कभी स्टंप के ऊपर से बॉल चली जाएगी, कभी फुल टॉस पे विकेट मिल जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फुल टॉसेस डालो या ये डालो। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीज़ें मैं उसको प्रिपेयर करूँ। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ में जो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ मैं चीज़ें, उसके बारे में ज़्यादा सोचूँ नहीं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और आगे बढ़ जाता हूँ। क्योंकि आज हमने 11 में अपने विराट भाई को मिस किया, क्या इंडिया वो अगले मैच खेलेंगे? बिकॉज वी रियली वांट टू सी हिम प्ले। मेरे को इंजरी का इतना स्टेटस पता नहीं है क्योंकि मैं लास्ट गेम भी नहीं था। होपफुली वो ठीक हो जाए, बट आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हिज इंजरी। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल सीन में आए थे तब भारत का जो कोच था, तो कितना श्रेय जाता है पारस में जो अभी का जो कोच है और राहुल भाई का? तो एंड ऑब्वियसली योर रोल इन द टीम, बिकॉज आज भी देख रहा था जब आप मैदान में ट्रेनिंग कर रहा था, प्रसिद्ध कृष्णा को आप बार बार गाइड कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, तो ये जो रोल बदला ये आप कैसे? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से अच्छी लगती है। शुरू ही क्रिकेट किया था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, आपको टफ चीज़ें करनी है। तो हमारी टीम में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे ही मैंने स्पेल डाल दिया तो प्रसिद्ध डाल रहा था मेरे बाद, तो मैं बता रहा था कि मेरे लिए क्या चीज़ें वर्क करी तो वो सब चीज़ें वो कर सकता है। एंड हमारी टीम में यही एटमॉस्फेयर कि चाहे हम जीतेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, अगर हम हार जाते हैं तो ऐसा नहीं माहौल बनाते हैं कि मतलब दुनिया ख़त्म हो गई है। तो वो स्टेबिलिटी के लिए मैनेजमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक लेवल हेड रखना एंड हर प्लेयर को मोटिवेट करना, इवन अच्छे दिन में क्या और चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें की कम्युनिकेशन चलती रहती है। तो बहुत अच्छा सेटअप में हेल्प हो जाता है यंग प्लेयर्स के लिए एंड हमारे लिए भी कि अगर समटाइम्स आप गेम में होते हो, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं हो रही कि अरे ये सब चीज़ें आप शायद कर सकते हो जो बाहर से मैसेज आता है। सो वो सब अच्छा सेटअप रहा है हमारा और अच्छा कम्युनिकेशन रहा है विद द कैप्टन, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और हमको आगे भी बेनिफिट देंगे। जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सर्स क्वेश्चन कि आप 3 फॉर्मेट खेलते हैं, आप 1 वीक के अंदर ये आपका तीसरा फॉर्मेट है, तीसरा मैच, तो एज ए मल्टी फॉर्मेट प्लेयर आपको ये बाइलैटरल और जो हमारा मल्टी टीम इवेंट्स है, ये आप पिक एंड चूज करके कैसे, मतलब यू कैन बी फिट ऑल्सो और आप सारे फॉर्मेट में आपका बेस्ट है, तो ये कैसे आप पिक एंड चूज कर सकते हैं मल्टी फॉर्मेट प्लेयर? सी इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं होता है कि आप पिक एंड चूज़ गेम्स करते हो, बट आप अंडरस्टैंड करते हो कि मे बी वर्ल्ड कप ईयर होता है तो कौन से फॉर्मेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है एंड आगे क्या चल रहा होता है। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल होता है तो मालूम है कि ये साल टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा है, तो आप पूरा कैलेंडर पे ध्यान रखते हो कि कौन सी सीरीज़ आ रही है, क्योंकि बहुत कोविड के वजह से ब्रेक हुआ था तो हम लोग काफ़ी क्रिकेट बैक टू बैक खेल रहे हैं, तो उसमें एक अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेनर्स के साथ, फिजियोज़ के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हो कि आप अपने आप को बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे रखते हो, तो जब क्रिकेट से बाहर भी जाते हो तो फ्रेश रहना, ये सब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सब ये सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि टीम मैनेजमेंट को साथ में लेके कि आपको कौन से फॉर्मेट को उस टाइम प्रायोरिटी देनी है और कौन सी सीरीज़